Assalamualaikum everyone. Am I audible? Yes, sir. वालेकुम सलाम। Yes. Thank you, Walaikum thank you. salam. Yes, sir. Thank you so much everyone for your quick response. Uh, Today we will be discussing research designs, inshallah. So we should wait a couple of more minutes as more people are joining in. So before we start our today's session, I would like you people to give a quick recap of yesterday's session. I would like volunteers, whoever, who want to share their, reflection of yesterday's class. Anybody? Alia, would you please give a quick recap of yesterday's class? Like, how did we go? What did we discuss? And what did you learn from it? Can you please? Yes, sir, sure. Yes, please. Thank you. Please, Alia, continue. Continue. Yes, sir. Yesterday we studied about the qualitative and quantitative and this difference between what's the qualitative and quantitative and some misconceptions as well. So the quantitative is all about collecting numerical data. As we also studied that there's a one misconception that we cannot convert non-numerical data into numerical data. So it was also possible like Likert scale in which if we say agree, disagree, so we can convert it into a 1, 2, or 2, 3, or 5 scale. And like there is another thing, when we use quantitative data, we use quantitative data when demands questions demands quantitative answers. That's why. And numerical changes, when there's numerical changes occurs, like for example, is achievement going up or down? For this, we will use the quantitative data to find out the states. And when we have to test the hypothesis, then we will use the quantitative data. And it fails sometimes because when we need explore depth answers like opinions of someone, so we don't use the quantitative, we use the qualitative. So this was. Great. and the Thank you so qualitative much. and the Yes. qualitative data, इन क्वालिटेटिव में ये था कि हम किसी के ओपिनियंस को इन डेप्थ किसी चीज को स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम क्वालिटेटिव यूज करते हैं. अगर हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चाहिए तो हम मिक्स मेथड यूज करते हैं उसके लिए. Great. Thank you. Thank you so much, Alia, for your detailed response. Yes, really, we discussed this, and today we will be focusing on different research designs. Uh, I would like one more response from you people, and then we will be continuing our today's session. So, who would share their reflection or feedback of yesterday's class? I would really like anybody who just volunteers and come and speak about it. यस सर. Yes, please, Doha, continue. अच्छा सर, कल हमने क्वालिटेटिव पढ़ा था और क्वांटिटेटिव रिसर्च को डिटेल में पढ़ा था. इसके अलावा हमने मिक्स रिसर्च मेथड के बारे में पढ़ा था. क्वांटिटेटिव हम वर्ड से ही समझेंगे. क्वांटिटी के बारे में डिस्कस हो रहा है, किसी भी चीज़ की तादाद. क्वांटिटेटिव रिसर्च फोकस ऑन कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा. ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम नंबर्स के ज़रिए जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं
कि मतलब एक ही काम कितनी दफ़ा हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक पुल पर खड़ी हूँ और मैं ये देखना चाहती हूँ कि मतलब 2 घंटे में कितनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, तो मैं उन सबको एक रिपोर्ट बनाकर वो लिखूंगी कि 40 कार गुजर रही हैं, 20 बाइक्स गुजर रही हैं। और उसी टाइम अगर मैं क्वालिटेटिव रिसर्च को यूज़ करूंगी तो मैं उनके रीजंस को जानने की कोशिश करूंगी कि इतनी कार अगर गुजर रही हैं तो क्यों गुजर रही हैं। 40 कार गुजर रही हैं तो 50 क्यों नहीं गुजरी। रीजंस के बारे में मैं जो है वो कोशिश करूंगी। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में मतलब खास बात यह है कि इसमें रिसर्चर की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। जो भी डेटा उसे मिलती है वो वही रखता है, उसे चेंज नहीं कर सकता। Yes, exactly. Thank you so much, Toha. Uh, See, we discussed in yesterday's class that why do we use quantitative research? और उसके अंदर we had four type of research questions, जिसके अंदर we were, you know, choosing quantitative research. Four major type of questions थे जिनको आंसर करने के लिए हम मोस्टली क्या करते हैं, हम क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज करते हैं। उनमें से जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन था, वो था कि हम जब क्वांटिटेटिव रिसर्च तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई अ, किसी भी चीज के बारे में जब आंसर करना हो तो हम उसको न्यूमेरिकल में आंसर करें। ठीक है, नंबर्स में आंसर करें। क्लियर। और उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि क्या हम क्वांटिटेटिव रिसर्च तब यूज करते हैं व्हेन वी हैव टू यू नो measure or observe the numerical change in over time in some of our variables in research, right? जैसे क्लास परफॉर्मेंस की बात हो रही थी। ठीक है। और उसके अलावा वी ऑल्सो यूज क्वांटिटेटिव रिसर्च व्हेन वी वांट टू एक्सप्लेन फिनोमेना थ्रू वेरिएबल्स, यानी डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं हमारी रिसर्च में विच विच वी यू नो एनालाइज थ्रू डेटा। ठीक है। हम हमारी रिसर्च में हम हमेशा वेरिएबल्स रखते हैं, राइट? क्वांटिटेटिव रिसर्च में वेरिएबल्स होते हैं एंड इन क्वालिटेटिव रिसर्च वी कॉल देम कंस्ट्रक्ट्स। ठीक है। तो in variables, these variables are actually controlled, and there are two types of variables. One is independent variable and other are dependent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं आता, किसी भी वेरिएबल के चेंज करने से उनमें चेंज नहीं आता, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, यानी उनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जहाँ पे अगर किसी भी वेरिएबल को चेंज किया जाए, यानी फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को थोड़ा सा चेंज किया जाए, मैनिपुलेट किया जाए, तो देन देयर देयर अकर्स अ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वी आर स्टडिंग के व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर्स आर यू नो इन्फ्लुएंसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग। ठीक है। तो लर्निंग जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, एंड फैक्टर बाकी जो भी होंगे जैसे स्टडी टाइम है या टीचिंग मेथडोलॉजी है, दीज विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इसलिए होंगे कि टीचिंग मेथड चेंज कर रिजल्ट चेंज होने से या ना होने से उस टीचिंग मेथड में कोई फर्क नहीं आ रहा, बट टीचिंग मेथड चेंज होने से जो लर्निंग है स्टूडेंट्स की वो चेंज हो रही है। सो टीचिंग मेथड हो या स्टडी टाइम हो, ठीक है, तो उसके अंदर उसकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, स्टूडेंट्स की वो चेंज हो रही है, तो मींस परफॉर्मेंस जो है या स्टूडेंट लर्निंग जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, बिकॉज इट इज बीइंग चेंज्ड, और इट देयर कम्स अ चेंज इन इट व्हेन वी मैनिपुलेट और व्हेन वी अल्टर जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। क्लियर बाबा? सो this is how variables work in research. अच्छा, उसके अलावा we there was fourth point or fourth type of questions when we use quantitative research, that was about hypothesis testing. In quantitative research we always have some kind of hypothesis, as we discussed yesterday, is the assumption or educated guess about the reality or अबाउट द रिजल्ट्स, कि मेरी स्टडी के ये रिजल्ट्स आएंगे।
ठीक है, एंड देन वी कंडक्ट रिसर्च एंड वी डू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और उसके बेसिस पे वी डिसाइड कि वेदर आर हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. So these are four major, types for which we use uh, quantitative research. Just give me a while. Let me open the PDF and I'll be talking about हमारे जो क्वालिटेटिव के रीजंस थे. क्वालिटेटिव रिसर्च के जो हमारे रीजंस थे, उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड दिस, क्या कहते हैं इसको, जब हम किसी भी चीज के बारे में इन डेप्थ स्टडी करना चाह रहे हैं या किसी भी चीज के रीजंस को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, देन वी यूज क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च. ठीक हो गया जी. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके. ऑलराइट. सो जब भी हम जब हमें किसी चीज के बारे में, प्रोसेस किसी चीज के प्रोसेस के बारे में या उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली वी वुड नीड सम काइंड ऑफ इन डेप्थ इनसाइट्स ऑन इट. तो इट इज़ वेयर व्हेन वी यूज़ क्वालिटेटिव रिसर्च. दूसरा हम यूज़ करते हैं जब भी किसी प्रोग्राम या किसी भी चीज़ के इंडिविजुअलाइज्ड आउटकम्स को स्टडी करना चाह रहे हैं. जैसे लाइक फॉर एग्जांपल, हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट के रिजल्ट्स आते हैं. फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के रिजल्ट आते हैं 30%. ठीक है, तो अब 30% जब रिजल्ट्स आए हैं उसके, तो वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि वाई इसके 30% रिजल्ट्स आए हैं, वाई दिस लो. बाकी ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं 60% एंड दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट हैज़ गॉट 30%, तो वाई इट इज़ सो. सो हम उसको स्टडी करने के लिए जब हम जो टाइप ऑफ रिसर्च यूज करेंगे, दैट विल बी क्वालिटेटिव रिसर्च. हम क्योंकि उसके रीजंस को स्टडी करेंगे. एज दोहा गेव एन एग्जांपल ऑफ कार्स के जो किसी भी उसी तरह से कि कोई कार क्यों गुजर रही है यहाँ से, ठीक है, अल्टरनेट रूट क्यों नहीं दे रही है. तो उसी तरीके से मतलब उसके जो रीजंस हैं, वो उसको स्टडी करने के लिए हम क्वालिटेटिव रिसर्च यूज करते हैं. उसके अलावा वी डिस्कस थर्ड, किसी भी चीज़ के बारे में जब हमें इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो व्हेन वी यूज क्वालिटेटिव रिसर्च. उसके बाद फोकस इज ऑन डाइवर्सिटी अमंग डिफरेंट पीपल अबाउट अमंग आर रिसर्च पॉपुलेशन. अब होता क्या है कि व्हेन वी आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट क्वांटिटेटिव रिसर्च के, क्या है ना कि क्वांटिटेटिव रिसर्च हमेशा नंबर्स पे डिपेंड करती है, एक चीज़. दूसरा ये होता है कि उसके अंदर it doesn't care about any diversity. It doesn't care about whether you are male, female, whether you are Muslim, non-Muslim, whether whatever your ethnic group is. ठीक है, you just give response and according to which a researcher analyzes the data. But in qualitative research, we believe that reality is subjective, and due to which we think that it is necessary that we should consider and collect the perspective of everybody involved in the research, right? So we to understand that perspective of diversity of diverse people, like for example students and teachers and management hai, for when we are doing study in school या यूनिवर्सिटी में अगर हम स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के या किसी भी चीज़ के बारे में. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द यूनिवर्सिटी. उसके अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज आते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, मैनेजमेंट आती है. तो इन ऑर्डर टू कंडक्ट अ रिसर्च ऑन यूनिवर्सिटीज किसी भी फैक्टर के ऊपर यूनिवर्सिटी के, so we need to consider all the factors and all the perspectives from everybody in different fields in the university or in different departments of the university, right? तो इसलिए भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च यूज करते हैं. एंड देन द फिफ्थ जो रीजन था जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च यूज करते हैं, दैट इज
the intent to understand the program theory, कि किसी भी theory को uh, हम स्टडी कर रहे हैं तो वो theory क्यों है, like what is the impact of that theory that we study from qualitative quantitative purposes, but why this particular impact, why not less, why not above, right? So उसको study करने के लिए in detail study करने के लिए we use qualitative research. So these are five major reasons why we use qualitative research. Now moving forward, we will be discussing research designs. Uh, can give me can anyone give me the definition of research design that we discussed yesterday? Anybody from the participants who would like to give a definition of yes, Laiba. Laiba, just give me Laiba Abasi. Laiba Abasi, give me the definition of research approach and a research design, and what is the difference between two? Do we have Laiba Abasi? Mm, Hello. yes, Laiba, please. I think research approaches are three types of जो हमने कल पढ़ी थी, mixed and qualitative and quantitative. ये approaches हैं three. Yes, exactly. और research design जो होती है वो मुझे समझ में नहीं. Okay, it's okay. Anybody else can give a quick recap of research design? Research design क्या है? Yes, Vakar, do you want to say Sir, something? may I tell? Yes, sir. Yes, Sir, please. research design is a detailed plan. We can say we can conduct data through survey or in case study like qualitative and quantitative research. Am I right or wrong? Yes, you are right. See, while deciding whether I'm going to use qualitative data or quantitative data or mixed data, that is the process in approach, right? But once we decide that we will be collecting or using qualitative data or quantitative data or both data, so then then there comes a type uh, position or the place or the time to decide whether which research design I'll be choosing, right? So deciding the type of data is comes under the approach, and that is the approach कि हम कौन से type of data को use करेंगे. Yes, Alia, please give me the definition of design. डिजाइन में हम Mm-hmm. डिजाइन चूज करते हैं टू गिव द क्रेडिबिलिटी एंड गिव द एक्यूरेट रिजल्ट्स टू मैक्सिमम Exactly, एक्यूरेट रिजल्ट्स तो exactly. इसमें फिर ज्यादातर डिजाइन में जो है इवन क्वांटिटेटिव में भी और क्वालिटेटिव में भी, दोनों में डिजाइन हम यूज करते हैं कि अगर क्वालिटेटिव किसी चीज को हम रियलिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एथनोग्राफी करते हैं, फिनोमेनोलॉजिकल करते हैं, या मतलब डिपेंड करता है कि हम चूज क्या करते हैं, और डिजाइन के ही बेस पर हम डेटा कलेक्शन मेथोडोलॉजी को एडॉप्ट करते हैं और उसको यूज करते हैं. इस तरह से क्वांटिटेटिव में भी कि हमारी क्रेडिबिलिटी किस में है, हम सैम्पलिंग साइज किस तरह से लेते हैं, पूरा मतलब उसके ऊपर फिर डिपेंड करता है. Exactly. Research design is basically your specific plan about how you're going to collect the data, how you're going to analyze the data, and how you're going to interpret the data. Clear? So, a research approach is deciding of what data you need, and once you decide what data you need, whether it is qualitative, quantitative, or mixed, then you decide how you will collect the data, how will you, analyze the data, and how will you, interpret the data. This is the design, particularly. Clear? And Uzma says research design is a plan framework outlining how to conduct research, including methodology, data collection,
and the analysis to ensure validity, reliability, and generalizability. Yes, exactly. When while choosing research design, it is very, very, very important that we choose appropriate design which is relevant to the data we use and also the research questions that we have. Because of choosing appropriate research design would highly impact on the results that that your study would be yielding. राइट जो आपकी रिसर्च से रिजल्ट्स आएंगे वो डिपेंड करेंगे कि आप रिसर्च डिजाइन कौन सी यूज कर रहे हो, राइट। एंड कल एक क्वेश्चन आया था हमारे पास कि हमारे जो रिसर्च पेपर्स हैं हमारे पाकिस्तान में जो रिसर्च होती है वो पब्लिकेशंस इतनी अच्छे जर्नल्स में नहीं हो पाती, और जब हम अच्छे जर्नल में किसी में भेजते हैं तो दे सजेस्ट दे से डिस्क्वालीफाई आर रिसर्च। I'm sorry, guys. I just received a call from HR in my university. There was little issue. So, all right. So, where were we? We were discussing about design, right? Here, design चूज करना, अप्रोप्रिएट डिजाइन चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग के कौन सी रिसर्च डिजाइंस हैं हमारे पास इन क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स मेथड, और उसके बाद वी विल बी डिसाइडिंग कि इन इन रिसर्च डिजाइंस के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग कि कौन सी रिसर्च मेथड या कौन सी रिसर्च डिजाइन कब इस्तेमाल करनी चाहिए। Just give me a moment so that I can share the screen and we will be good to go. Anybody has any questions you may ask? Sir, I have question. Yes, 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 yes. Sir, research approach or research tool is same thing or different? Research approach and what is Research tool. research tool? Yes, research tool is something that we use to collect data, राइट। जैसे रिसर्च टूल होता है इंटरव्यू, रिसर्च टूल होता है ऑब्जर्वेशन, रिसर्च टूल होता है हमारे पास क्वेश्चन आयर या सर्वे, एक रिसर्च टूल होता है, राइट। सो देयर आर मल्टीपल रिसर्च टूल्स, दे कम अंडर द रिसर्च डिजाइन, और रिसर्च डिजाइन कम अंडर द रिसर्च अप्रोच। सो रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च टूल आर टू डिफरेंट थिंग्स। रिसर्च टूल इज यूज्ड बेस्ड ऑन द रिसर्च अप्रोच ऑब्वियसली, ठीक है। कि मुझे जब क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच है मेरी तो मुझे कौन से टूल्स चाहिए, क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच है मेरी तो डिफरेंट टूल्स हैं उसके लिए, राइट। तो वी विल बी डिस्कसिंग इंशाल्लाह रिसर्च टूल्स भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, डेटा कलेक्शन टेक्निक्स भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। यस आलिया, यू वुड लाइक टू से समथिंग, यू हैव रेज्ड हैंड और यू जस्ट शेयर्ड व्हाट यू वांटेड टू शेयर। सॉरी, वो प्रीवियस मैंने रेस किया था तो डाउन नहीं किया। हेलो।
All right, thank you, Alia. आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। Yes. I just unmuted. I was on mute. Yes. My screen is visible to you people. Yes. जी। All right. Thank you. Yes, sir. Thank you for the acknowledgement. Thank you. All right. As we discussed that there are different research designs under each research approach. So we will first be discussing quantitative research designs, which include experimental research, correlational research, survey design, longitudinal design, cross-sectional research design, right? So first of all, let's gi- can anybody tell me what is experimental research? Do you have any idea or what do you understand by the word experimental research? हम बेसिकली दो ग्रुप्स बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है ऑफ द सब्जेक्ट्स जिन पे हम रिसर्च कर रहे हैं। कंट्रोल ग्रुप को उनके नेचुरल सर्कमस्टांसिस में रखा जाता है। ऑन द अदर हैंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं एंड देन वी कंपेयर द रिजल्ट्स टू सी कि हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है और उसकी बेसिस पे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। Exactly, Daniel. Thank you so much. In experimental research is basically when we try to implement something in some kind of environment. Jैसे experimental research is more likely to be done in natural sciences or medical sciences or in DPT maybe, right? तो experimental research में ये होता है कि when let me just give you the detailed definition. Just give me the definition. Okay, experimental research is a quantitative research method characterized by the systematic manipulation of one or more independent variables to observe their effect on the dependent variables. As I said earlier, जैसे जब मैं variables को explain कर रहा था, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जैसे दानियाल ने बताया कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं और उसमें एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम इस रिसर्च के अंदर क्या करते हैं, एक इन्वायरमेंट बताते हैं। और ये रिसर्च हम करते इसलिए हैं कि हम कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या कोई ड्रग है, फॉर एग्जांपल इन मेडिकल रिसर्च कोई पिल हमने बनाई है या कोई सिरप हमने बनाया है, राइट? तो उस सिरप का इम्पैक्ट या इफेक्ट देखने के लिए कि वेदर दिस इज इफेक्टिव ऑन समथिंग और सम पर्सन और सम पीपल, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्लीप के लिए हमने पिल एक बनाई है, ठीक है? तो हम वो स्लीपिंग पिल जो है वो 10 लोगों पे ट्राई करना चाह रहे हैं। तो हम 20 लोग अपनी रिसर्च में लेंगे, ठीक है? 10 लोगों को हम वो पिल खिला के सुलाएंगे, ठीक है? एंड 10 को वैसे ही सुला देंगे, राइट? उनकी जो रूटीन है वो सेम रहेगी, बट पिल जो एक वेरिएबल है वो डिफरेंट रहेगा दोनों ग्रुप्स में, ठीक है? और उसके बाद हम देखेंगे कि जो नेचुरली स्लीप कर रहे थे उनकी स्लीप साइकिल क्या है, और जो कितना है और क्या है, और जो पिल लेकर के सो रहे थे उनका स्लीप साइकिल कितना और क्या है, राइट? तो इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें दो ग्रुप्स होते हैं, जिसमें जिस ग्रुप के साथ इंटरवेंशन किया जा रहा है, जैसे कि हमारे इस एग्जांपल में जिनको पिल दिया जा रहा है वो उन पे इंटरवेंशन किया जा रहा है। तो उसको जब हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप,
ठीक है जी। और दूसरा जो ग्रुप है जो नेचुरल सेटिंग में जैसे दानियाल ने बताया कि रहेगा, उसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड ग्रुप। राइट। तो इन दोनों ग्रुप्स के रिजल्ट्स में डिफरेंस हम जब स्टडी करना चाह रहे हैं तो हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं। ठीक है जी। कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द कॉजल इफेक्ट ऑफ सर्टेन वेरिएबल्स ऑन सर्टेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है। तो कॉजल रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। आगे आते हैं जी। द पर्पस ऑफ दिस रिसर्च is to establish cause and effect relationship between variables, as I just said, by systematically manipulating independent variables and controlling for extraneous factors. Researchers aim to determine whether changes in the independent variable lead to observable changes in dependent variable. यानी जैसे मैंने बताया कि जब हम किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं टू सी वेदर द वेरी डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस और नॉट, तो उस पे फिर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं जी एडवांटेजेस क्या हैं। Advantages of this experimental research is include कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉजल रिलेशनशिप उस पे स्टेब्लिश करते हैं। जैसे कि पिल को लेने से फॉर एग्जांपल लोगों की स्लीप साइकिल बेटर होती है, तो हम कहेंगे कि बेटर स्लीप साइकिल इज एसोसिएट यू नो अगर कोई पिल खाएगा तो उसकी जो स्लीप साइकिल है वो बेटर हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई पिल नहीं खाएगा तो उसकी स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब रहेगी। सो दिस इज हाउ वी यूज causal relationships, or we establish causal relationships in experimental research. दूसरा क्या है, इसके अंदर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। एवरीथिंग इन 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 दिस एक्सपेरिमेंट हम क्या करते हैं, हमारे पास कंट्रोल, हमारे हमारे पास उसका पूरा कंट्रोल होता है। जब हम जो चीज़ उसके साथ इंटरवेंशन मैनिपुलेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द advantages, because this is something where the researcher can generate or yield the results that he or she expects। ठीक हो गया जी। तो मैं अपनी मर्जी के रिजल्ट्स, मैं उसके अंदर इंटरवेंशंस, जब तक मेरे अपनी मर्जी के रिजल्ट्स नहीं आ जाते मैं उसमें इंटरवेंशन करता रहूंगा, चेंजेस करता रहूंगा। राइट। जो मुझे चाहिए थे या जो मेरे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वो जब तक नहीं आ जाते या जब तक मेरी हाइपोथेसिस अप्रूव नहीं हो जाती तो मैं उसको डिफरेंटली चेंजेस करता रहूंगा वेरिएबल्स के अंदर। ठीक हो गया जी। उसके अलावा जो इसकी इस रिसर्च डिज़ाइन की एडवांटेज है वो ये है कि इसको हम रिप्लिकेट कर सकते हैं। यानी जो एक्सपेरिमेंट मैंने एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किया, वो जैसे मैंने कल शायद फर्स्ट डे पे आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक ये फायदा भी होता है कि इसको रिप्लिकेट किया जा सकता है। पॉजिटिविज्म में हमने ये डिस्कस किया था कि एक रिसर्च को रिप्लिकेट किया जाता है टू वैलिडेट द नॉलेज। हमने कहा था कि रिसर्च करते ही हम दो पर्पसेस के लिए, वेदर टू जनरेट न्यू नॉलेज और टू वैलिडेट एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो एग्जिस्टिंग नॉलेज, एक एक्सपेरिमेंट एक बंदे ने एक जगह पे पाकिस्तान में किया, फॉर एग्जांपल केपीके में एक बंदे ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट को एक बंदा सिंध में बैठ करके रिप्लिकेट कर रहा है टू सी वेदर इट वर्क्स इन सिंध एज वेल और इट डजेंट वर्क इन सिंध। ठीक है। तो दिस इज द रिप्लिकेबिलिटी। एक ही स्टडी को, एक ही रिसर्च को किसी और जगह पे करके देखना किसी और एनवायरनमेंट में, बट इसके अंदर ऑल द प्रोसीजर्स फॉलोड बाय द पर्सन, फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट रिसर्चर, वही प्रोसीजर्स जो फर्स्ट रिसर्चर ने अडॉप्ट किए हैं, हम भी वही प्रोटोकॉल्स और वही सारी चीज़ें क्या करेंगे, अपना फॉलो करेंगे। क्लियर बाबा। तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस, और भी हो सकते हैं, बट सिंस मेजर मेजर ये हैं एंड वी हैव लिटिल टाइम, तो ऑब्वियसली वी आर स्टिकिंग टू वंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद इसके अंदर there are multiple challenges as well,
while of choosing experimental design. One is external validity concerns. Strict control in experimental setting may limit the generalizability of the findings to the real world situations. Yes, exactly this happens when we are controlling something. ठीक है, उसको नेचुरल सेटिंग में नहीं रहने दे रहे हैं, तो obviously there would be some kind of जनरलाइजेबिलिटी इशू कि हमने जब जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं वो तो एक पर्टिकुलर सिस्टम या पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में मिले हैं, बट अगर इसको हम नेचुरल सेटिंग के अंदर रिसर्च करें तो वेदर हाउ रिलायबल वुड इट बी और हाउ जनरलाइजेबल वुड इट बी, ठीक है, इन नेचुरल सेटिंग और इन रियल वर्ल्ड सिचुएशंस. सो दिस इज समथिंग समथिंग चैलेंजिंग के एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को ये चैलेंज होता है कि क्या हमारी जो फाइंडिंग्स हैं, अल्दो इन मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स जो रिजल्ट्स कंट्रोल उस एक्सपेरिमेंट से आते हैं वही जनरलाइजेबल होते हैं टू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस, बट समटाइम्स इट बिकम्स चैलेंजिंग दैट हमारे एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आए हैं वो रियल वर्ल्ड सिचुएशन में नहीं आते. जैसे आपने देखा होगा कि कभी 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 किसी दवाई के ऊपर, किसी मेडिसिन के ऊपर बैन हो जाता है, राइट. वो बैन क्यों होता है? बिकॉज जब वो स्टार्ट की थी या जब लैब में उसके टेस्टिंग हुई थी तो उस टेस्टिंग के अंदर वो वही रिजल्ट्स दे रही थी जो उसने रिजल्ट्स देने थे, ठीक है. बट व्हेन इट कम्स टू द मार्केट और फिर वो इन्फेक्शन करने लग जाती है या रिएक्शन करने लग जाती है पेशेंट्स को, तो देन इट इज बैंड, राइट. वो इसलिए क्योंकि वो जो दवाई थी या वो जो मेडिसिन थी वो जस्ट एक कह लें कि that was tested in the controlled system, but when it came to real world situation its effects change because of the various variables. क्योंकि हमने वहां पे तो वेरिएबल्स सेम कांस्टेंट रखे हुए थे ना. a lot of variables were constant, external factors जो थे वो constant थे. अब क्योंकि रियल वर्ल्ड सिचुएशन में एक्सटर्नल फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट्स के डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस होती हैं, कुछ लोगों को कुछ इन्फेक्शंस होते हैं या समथिंग, लाइक देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. तो उसकी बेसिस पे वो अगर मेडिसिन किसी को अगर आप चले जाएं वो प्रोग्राम इन्फेक्शन कर रही है तो देन इट इज काइंड ऑफ बेंड और रिस्ट्रिक्टेड. सो this is one of the examples of first challenge, that is external validity challenge, that हमारे पास किसी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट को रियल वर्ल्ड सिचुएशन में समटाइम्स इश्यूज आते हैं उसको जनरलाइज करने में. देन देयर कम्स एथिकल कंसिडरेशन एज वेल. आपने देखा होगा कि अ लॉट ऑफ मेडिकल रिसर्च मोस्टली ये होता है कि एथिकल कंसर्न्स आते हैं या कंसिडरेशंस के इश्यूज होते हैं, क्योंकि समटाइम्स एक्सपेरिमेंट के अंदर जब हम मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं तो जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उनको पता ही नहीं होता कि मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है. मोस्ट ऑफ समटाइम्स रिसर्चर उनसे हाइड करते हैं बिकॉज अगर वो बता देंगे तो वो एक्सपेरिमेंट करने नहीं देंगे, ठीक है जी. तो दैट इज सम काइंड ऑफ एथिकल कंसर्न, क्योंकि हर किसी की लाइफ अपनी मर्जी से, एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट एंड एवरीबडी इज फ्री टू लिव देयर लाइफ. बट व्हेन इट कम्स टू सच काइंड ऑफ रिसर्च जिसमें उनकी लाइफ को खतरा हो या उनकी आइडेंटिटी को या उनको किसी भी तरह से कोई डैमेज होने का खतरा हो, तो वी मस्ट इन रिसर्च seek the consent from the people on which we are experimenting. तो समटाइम्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता. वो उसके भी रीजंस है ऑब्वियसली, एज आई सेड कि वो समटाइम्स इसलिए होता है कि अगर हम बता देंगे अपने पार्टिसिपेंट्स को कि हम ये करने लगे हैं आपके साथ, तो वो फिर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, राइट. सो दैट्स अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर हमारा एक्सपेरिमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा, एंड देन ऑब्वियसली इट इज़ वेरी वेरी रिसोर्स इंटेंसिव एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है. नीचे जो उसका चैलेंज लिखा भी हुआ है, तो जाहिर है फिर वो सारे रिसोर्सेज और वो सारी एफर्ट, टाइम एंड एवरीथिंग गोज इन वेन, वो ज़ाया हो जाती है. तो दैट्स व्हाई देयर कम्स द एथिकल कंसिडरेशन एज वेल, एंड ऑल्सो इट इज़ रिसोर्स इंटेंसिव. इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारी एफर्ट लगती है, टाइम लगता है,
एंड एक्सपर्टीज लगती हैं to conduct a successful experiment. So this is what experimental research design is, its challenges and advantages. Anybody has any questions so far, you can ask, and we will be moving forward to correlational research. Everything clear? Should we move on? Yes, sir. All right. Thank you so much, Wakar. सर हम इसको मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं या फिर हम हर फील्ड में यूज कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल? बाबा एक्सपेरिमेंटल को हम हर फील्ड में यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू आर फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, और आप एक नया टीचिंग मेथड अप्लाई करना चाह रहे हैं, राइट, तो उसके अंदर अब रिसेंटली मेरी एक टीचर हैं, उन्होंने एक रिसर्च की है कि एक एआई के थ्रू स्टूडेंट्स को इंग्लिश रीडिंग सिखाया है उन्होंने, ठीक है. तो वो शी वाज टीचिंग इंग्लिश राइटिंग और एंड रीडिंग थ्रू एआई, ठीक है. तो she chose 78 people overall, and out of which half of the students were in 38 students almost were from अपना ये जो होता है कंट्रोल्ड ग्रुप, और 38 स्टूडेंट्स थे जो कि उसमें थे अपना ये क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है. तो फिर उनकी प्री टेस्ट लिया, ठीक है, कि पहले टेस्ट लेने से ये होता है कि एजुकेशन में हम प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट करते हैं कि पहले दोनों के रिजल्ट्स क्या हैं. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये होता है कि प्री टेस्ट लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हमारे पास क्या रिजल्ट्स हैं, ठीक है. फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं एक ग्रुप के ऊपर, वो एआई वाला जो मॉडल है या टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो इम्प्लीमेंट की, और बाकियों को नेचुरल सेटिंग में जो नॉर्मल रेगुलर कन्वेंशनल वे है उससे पढ़ाया जा रहा था, और एक ग्रुप को पढ़ाया जा रहा था एआई के थ्रू. तो उसके बाद एक वो इंटरवेंशन था फॉर एग्जांपल 2 मंथ्स का, ठीक है. तो 2 मंथ्स के बाद उनसे दोबारा टेस्ट लिया जाता है एंड टू सी वेदर there is a difference between controlled group and experimental group. कि कंट्रोल्ड ग्रुप को तो कन्वेंशनल वे से पढ़ाया जा रहा था पहले भी अब भी, तो उनके टेस्ट पे जब लिया गया था तो उस टेस्ट पे उनका क्या रिजल्ट था और उनकी कितनी इंप्रूवमेंट आई कंट्रोल ग्रुप की, ठीक है. एंड ऑन द अदर हैंड जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसके क्या चेंजेस आए, ठीक है, उसके रिजल्ट में क्या चेंज आया, और उसके बाद देन वी कंपेयर बोथ द पोस्ट टेस्ट रिजल्ट ऑफ बोथ, यानी कि कंट्रोल ग्रुप एंड उसका जो है हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उन दोनों के रिजल्ट्स को स्टडी एनालाइज किया जाता है कि वेदर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. पहले तो उनके रिजल्ट्स ये थे, अब इनमें कितना परसेंट हाइक आया है, कंट्रोल ग्रुप में कितना आया है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कितने रिजल्ट्स इंप्रूव हुए हैं. सो दैट्स हाउ वी यूज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन एजुकेशन सिस्टम. और भी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ रिसर्च, जैसे डीपीटी है फॉर एग्जांपल. मैंने जो वो बैकपैक वाला और बैकपैक वेट का या बॉडी पोस्चर के ऊपर जो इम्पैक्ट है उसको हम स्टडी कर रहे थे, तो वी कैन यूज सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च on in DPT as well, and in psychology as well, and in other fields as well. So experimental research can be applied in any field or discipline, but considering कि उस field के अंदर what variables work. Clear? यस सर. All right. Let's move on to our next slide, that is correlational research. All right. Correlational research is a quantitative research method that examines the statistical association between two or more variables without manipulating them. It assesses the degree of and the direction of the relationship, typically using correlation coefficient to understand how changes in one variable correspond to the changes in another variable. अच्छा, कोरिलेशन, अब क्योंकि इस डेफिनेशन को पढ़ने से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि इन दिस काइंड ऑफ रिसर्च हम जस्ट रिसर्च के अंदर रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं,
राइट। हम सिर्फ और सिर्फ ये देखने की कोशिश करते हैं कि वेदर वन वन टाइप ऑफ एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या रिलेशनशिप है, और एक को चेंज करते हैं तो दूसरा किस तरह से चेंज होता है, वेदर इट इज क्या कहते हैं, पॉजिटिवली इम्पैक्टेड और नेगेटिवली इम्पैक्टेड। ठीक है। तो उनका डायरेक्शन क्या है और डिग्री क्या है, कितना क्लोजली एसोसिएटेड है और इन व्हाट वे एसोसिएटेड है, यानी प्लस माइनस का जो जिस तरह होता है डायरेक्टली एसोसिएटेड और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड या इनवर्सली एसोसिएटेड। ठीक है। और दूसरा हाउ क्लोज, यानी कि कितनी हाउ मच चेंज अकर इन वन वेरिएबल when we change bring certain amount of change into the second variable। ठीक है। तो it is just about the relationship or the direction relationship either of its degree or its of direction। कि डायरेक्शन उसकी क्या है, यानी डायरेक्शन का मतलब है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और डिग्री के कितना चेंज करने से कितना चेंज हो रहा है। ठीक है। सो दिस इज हाउ कोरिलेशन रिसर्च वर्क्स। क्लियर। अब ये हम करते, अब ऑब्वियसली विद द डेफिनेशन वी अंडरस्टैंड कि हम ये जब करते हैं जब हमें किसी भी चीज़ के डायरेक्शन, किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान में उनका रिलेशनशिप का डायरेक्शन मालूम करना हो या उनकी डिग्री मालूम करना हो कि कितनी एसोसिएशन है दोनों के अंदर। एंड वी यूज डिफरेंट कोएफिशिएंट्स, और one very pertinent kind of coefficients that we use in such kind of research is Pearson's R coefficient। और वो हम फिर आगे देखेंगे कि पियर्सन आर कोएफिशिएंट क्या होता है। ठीक है। तो दिस प्रोवाइड्स दी सम काइंड ऑफ प्रिडिक्शंस के एक को चेंज करने से दूसरा कितना चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का हम एग्जांपल लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का क्या रिलेशनशिप है आपस में। तो इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, या कम होती है या ज्यादा होती है। ठीक हो गया। या फिर उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, यानी कम होना या ज्यादा होना, ये डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। फिर कितनी इन्फ्लेशन होगी तो कितनी एम्प्लॉयमेंट कम होगी या ज्यादा होगी। ठीक है। तो दिस इज हाउ वी स्टडी को डिफरेंट वेरिएबल्स इन कोरिलेशन। ठीक हो गया जी। Anybody has any questions so far in understanding correlation and experimental research? तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, and we will be moving forward to सर इसमें advantages हम and सर disadvantages. All right। सर आप इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं कोरिलेशन रिसर्च का? जी जी जी, अभी मैंने एग्जांपल दिया ना। देखें, अगर एक रिसर्चर है वो स्टडी करना चाह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन रेट इन द कंट्री एंड द अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री। ठीक है। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन रेट है हमारे पास आजकल पाकिस्तान में 35%। ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट रेशो क्या है हमारे पास, ग्रेजुएशन वर्सेस एम्प्लॉयमेंट को हम देखते हैं कि कितने ग्रेजुएट्स हो रहे हैं हमारे पास, और उनमें से नौकरी किनकी लग रही है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट रेशो। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 2% एम्प्लॉयमेंट रेशो है एट 35% ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये इन्फ्लेशन कम होगा तो वेदर एम्प्लॉयमेंट का रेशो बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है। एक को हम कम करके देखते हैं, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन को हमने कम किया, वी ब्रॉट इट टू 20%। ठीक है। तो हम देख रहे हैं, हम ये देखेंगे कि वेदर फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है टू 4%। ठीक है। तो हम ये डिसाइड, हम इससे ये करेंगे, इस्टेब्लिश होगा कि एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन जितना बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट उतनी कम होगी, इन्फ्लेशन जितना कम होगा एम्प्लॉयमेंट उतनी बढ़ेगी। तो मीनिंग ये कि हमारी जो इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। ठीक हो गया। और कितनी इन्फ्लेशन बढ़े तो कम हो तो उतनी एम्प्लॉयमेंट, कितनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, दैट इज द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और एसोसिएशन। एंड डायरेक्शन तो मैंने आपको बताया कि इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो जैसे मैंने कहा कि इनमें इन्फ्लेशन कम हो रही है फॉर एग्जांपल और एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का आपस में
इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। सिमिलरली अगर इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्ट उनका रिलेशनशिप है। इज इट क्लियर नाउ? एक्सक्यूज मी सर, यस यस। ये जो अभी आपने एग्जांपल दी है, तो फिर अगर हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो इसमें हम मिक्स्ड अप्रोच यूज करेंगे, यानी इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों अप्लाई करनी पड़ेंगी हमें? नहीं 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 नहीं, it will just use numericals as I just gave the example of percentages। ठीक है, मैंने एग्जांपल क्या दी? परसेंटेजेस, राइट। यस परसेंटेज यस था, इन्फ्लेशन का भी परसेंटेज था और एम्प्लॉयमेंट का भी परसेंटेज था, जी। ठीक है। तो दोनों में ओके, हम कौन सा डेटा यूज करते हैं? दोनों में हम यूज कर रहे न्यूमेरिकल डेटा, हैं एज क्वांटिटेटिव। न्यूमेरिकल डेटा, एग्जैक्टली, बिकॉज यस। कोरिलेशनल रिसर्च इज particularly design of quantitative research। हम क्वांटिटेटिव रिसर्च ओके की सर। डिजाइन्स पढ़ रहे हैं ना बाबा। यस, यस सर। क्लियर। ओके, थैंक यू। यस सर। All right baba, no worries, no worries। yes, Alia, you would like to say something more or you यस just forgot to? यस सर, ये मुझे मालूम करना है कि जिस तरह हम yes। अगर मिक्स मेथोडोलॉजी अप्रोच यूज करते हैं, उसमें हम्म जब हम डेटा करते हैं तो हम प्रिडिक्शन मॉडल बनाते हैं, प्रिडिक्ट हम्म करते हैं रिलेशनशिप देखने को। तो उसको हम्म अगर हम पब्लिकेशन में इसको ये लिखेंगे कि ये कोरिलेशन स्टडी, अगर वो एक सेट हम डेटा का, डेटा एनालिसिस का लेंगे तो उसके हम्म। ऊपर ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, वेट, वी आर जस्ट ऑन क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइंस। हम जब हम्म क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइंस के अंदर आएंगे ना, तो वी ऑब्वियसली यूज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा इन दैट। तो हमारे पास जो रिसर्च डिजाइंस है ना, ऑब्वियसली जो भी क्वांटिटेटिव में हो रहा है, that will also be happening in qualitative mixed method। जो ओके, सही। कॉल ठीक है, तो हम्म कोरिलेशन वहां पे भी होगा ऑब्वियसली, ठीक है। हम्म कॉजल इफेक्ट वहां पे भी होगा, बट हम्म वहां पे जिस तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे ना डिफरेंट चीजों को, हम्म जैसे जैसे ये वाली कोरिलेशन स्टडी में हमने एग्जांपल ली इन्फ्लेशन हम्म और एम्प्लॉयमेंट के रेशो को हम्म स्टडी करने के लिए। तो सेम हम ये तो उसमें देखेंगे ही कि इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में है और कितनी हम्म डिग्री है, कितना परसेंट एक हम्म चीज को चेंज करने से दूसरे में कितना परसेंट चेंज आ रहा है। ये हम्म चीज ये तो स्टडी कर है, बट उसके साथ साथ हम मिक्स मेथड के अंदर ये भी स्टडी करेंगे कि इनमें ये चेंज क्यों आ रहा है। हम्म। दैट विल बी द पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। ओके और इन दोनों को मिला के हम मिक्स मेथड रिसर्च करेंगे। बट वी विल बी हैविंग डिजाइन फॉर मिक्स मेथड, वो हमारे पास ही दैट वी विल बी डिस्कसिंग सून इंशाल्लाह, ठीक है। ओके सो इट इज जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। क्लियर? ओके, थैंक ऑल राइट, नो वरीज, Sir, नो may I वरीज, नो want to वरीज। add something? यस प्लीज, हुज दिस? प्लीज नेम। Sir, Vakar Ahmed, Vakar Ahmed. ओके वकार, यस प्लीज। सर, क्वांटिटेटिव मेथड्स में, मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च में, जिस तरह हम कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाते हैं, तो उसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। मिसाल के तौर यस पे यस। एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट मेहनत करेगा, वर्क हार्ड करेगा, तो उसके ग्रेड्स अच्छे आएंगे। तो मतलब स्टूडेंट पे ये दोनों चीज़ें डिपेंड करें। स्टूडेंट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, और वो जो दो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये होगा पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा, एक मिनट, जस्ट जी। जस्ट कम अगेन बिकॉज आई थिंक यू आर मिक्सिंग द थिंग्स अप। स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है। जी सर, स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट और वेरिएबल, वर्क अच्छा, का। लेट मी क्लियर इट। डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल व्हिच चेंजेस व्हेन वी चेंज इन द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम खुद से चेंज करते हैं, ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है, तो सर स्टूडेंट ठीक जो है। होगा तो इनमें इंडिपेंडेंट स्टूडेंट होगा। का स्टूडेंट होना हम्म। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि ठीक क्योंकि है सर। स्टूडेंट परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकती है, हम्म। ठीक है। बट ठीक है स्टूडेंट का स्टूडेंट होना डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हो सकता, बिकॉज स्टूडेंट लाइक स्टूडेंट को किसी फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस चेंज कर दी हमने, ठीक है, परफॉर्मेंस बढ़ा दी या परफॉर्मेंस कम करा दी, तो उसमें स्टूडेंट के स्टेटस ऑफ स्टूडेंट को तो फर्क नहीं पड़ रहा।
समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर, बिल्कुल सर, मैं बस यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। या मतलब इंडिपेंडेंट को एग्जैक्टली डिपेंडेंट कर दिया एग्जैक्टली। था, जी बिल्कुल। जी 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 या सो it's okay, no worries, no worries, we will be discussing, कोई मसला नहीं है। Yes, Daniel, you have raised hand, yes, quickly, because we have 1 hour left in the meeting and we have a lot of methods to discuss. Yeah, I just wanted to add to the previous question, that is Yes, student is the subject. Student का student होना is not itself a variable, क्योंकि वो subject है जिस पे रिसर्च की जा रही है। अब इसमें yes, हमारे yes, पास yes. इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो आ रहे हैं जो वो मेहनत कितनी कर रहा है, और उस पे डिपेंड Mm-hmm. करता है कि उसके ग्रेड्स कितने आते हैं। तो ये दो Exactly. वेरिएबल्स हैं जो इन क्वेश्चन है राइट नाउ। Yes, 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 yes. This is what I and Abakar agreed on, कि student variable नहीं है। Thank you, Daniel. Thank you so much. All right, experimental research हमने कर ली, advantages, correlations. Now, here we are. एडवांटेजेस क्या हैं इसकी? रियल वर्ल्ड एप्लीकेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। कोरिलेशन रिसर्च ऑफन रिफ्लेक्ट्स रियल वर्ल्ड सिचुएशंस, मेकिंग फाइंडिंग्स एप्लीकेबल टू एवरीडे सिनेरियोज। जैसे हमने उसको किया, क्या कहते हैं, ये इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयबिलिटी वाली रिसर्च का एग्जांपल दिया, तो ये एप्लीकेबल होती है इन रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। और इसकी ब्रॉड एक्सप्लोरेशन होती है। रिसर्चर्स एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स दैट मे चैलेंजिंग एंड अनएथिकल टू मैनिपुलेट एक्सपेरिमेंटली। मतलब इन इस तरह के रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं हम कोरिलेशन स्टडी में, जो कि एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं है। अब जाहिर है एक्सपेरिमेंटली हम इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट को एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकते इन दोनों को, ठीक है, बिकॉज दैट इज नॉट इन 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 आवर हैंड। it is natural, it is the economy of the country that decide the inflation and the employment ratio. So when something is beyond our control and we want to even still we want to study this, so then we use correlational study instead of experimental research. Experimental research when we use when we have control over something, but correlation हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास कंट्रोल नहीं होता उस चीज के ऊपर। क्लियर? अच्छा, उसके बाद है प्रेडिक्टिव वैल्यूज हैं जी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोरिलेशंस अलाउज टू फॉर द प्रोडक्ट प्रिडिक्शंस। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हम क्वांटिटेटिव रिसर्च हेल्प करती है हमें प्रिडिक्शंस करने के लिए। एंड समवन आस्क के सर हम प्रिडिक्शंस कैसे करते हैं, तो इस तरीके से हम रिसर्च करते हैं कि एक चीज में चेंज आ रहा है तो दूसरी चीज में भी चेंज आएगा डायरेक्टली। ठीक है, जैसे आप लोग आजकल मानसून का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो आपके मोबाइल पे या न्यूज़ पे एक इंडिकेटर्स आते हैं कि अब लगता है कि बारिश होने वाली है, मतलब इस तरह रहेगा, मतलब साफ रहेगा, मतलब गर्द आलूद रहेगा या समथिंग। इस तरह की न्यूज़ सुनते हैं। तो वो न्यूज़ किस बेसिस पे आती है? न्यूज़ इस बेसिस पे आती है कि वहाँ पे हम इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट जो होते हैं वो देखते हैं कि इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। उन चेंजेस को देख के वो डिसाइड करते हैं कि ये चेंज आएगा तो ये चीज होगी, ये चेंज आएगा तो ये चीज होगी। तो उन वो आपस एक्चुअली चीजों के दरमियान में, बारिश और मौसम के दरमियान में जो कोरिलेशन है, ठीक है, उसको स्टडी करते हैं। तो फिर प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई ये चेंज आ गया है तो यहाँ तक ये मौसम पहुंचा है, अब इससे ज्यादा ये चेंज आएगा तो बारिश हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल, या ये होगा तो तूफान आ जाए, ठीक है। तो this is how they predict, because they are closely watching out the relationship between different factors in the environment that are liable or that are responsible for any change in the weather in particular area or in particular region। Clear? तो ये that is how quantitative research actually helps us to predict future or predict future events, कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे इन्फ्लेशन, जैसे इकोनॉमी क्या कहते हैं डाउन हो रही होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है। इसका मतलब जब भी इकोनॉमी डाउन होगी तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट का जो है वो इन्वर्स कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है, तो वो साथ ही साथ बढ़ते जाएंगे। ठीक हो गया जी।
तो इसी तरीके से हम प्रिडिक्ट करेंगे कि अभी फॉर एग्जांपल 35% पे 2% एम्प्लॉयमेंट रेशो है, 35% इन्फ्लेशन पे 2% एम्प्लॉयमेंट रेशो है। तो ये एम्प्लॉयमेंट अगर सॉरी इन्फ्लेशन अगर 50% पे चली जाएगी तो ये एम्प्लॉयमेंट का रेशो 1% रह जाएगा। ठीक है जी, क्लियर, समझ आ रही है? तो दिस इज हाउ वी प्रिडिक्ट इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। फिर इसमें चैलेंजेस क्या हैं? डायरेक्शनलिटी एंड थर्ड वेरिएबल कोरिलेशन डज नॉट imply causation. In direction of causation may be unclear. Uh, Additionally, the presence of third variable may influence observed relationship. Yes, अब दो चीजों के कोरिलेशन नॉर्मली दो वेरिएबल्स के दरमियान होगा। जब थर्ड वेरिएबल आ जाएगा तो फिर हम उसके अंदर दैट विल क्रिएट कंफ्यूजन, बिकॉज तब हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन से वेरिएबल की वजह से क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज वन चैलेंज कि हम हमारे पास इट इज नेसेसरी कि हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है जी, to to study the correlationship between, अदरवाइज फिर हमें जो एसोसिएशन है या जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करने में प्रॉब्लम होगी या उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे या हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि वेदर विच वेरिएबल इज कॉजिंग विच इफेक्ट। ठीक है, तो that's something challenging in correlational research। उसका उसके बाद है जी हमारे पास limited inferential power। Correlation studies cannot establish cause and effect relationship, limiting the ability to draw definite conclusions about the nature of the association। yes, जैसे मैंने बताया कि इसमें हम causation नहीं स्टडी करते, क्योंकि causation स्टडी करेंगे तो obviously it will become experimental। ठीक हो गया जी। नॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इस पे कॉजेशन स्टडी नहीं करते, अल्दो हमें कॉजेशन पता चल जाती है समहाउ टू सी टू मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स टाइम्स एंड अगेन वी गेट टू अंडरस्टैंड कि क्या चेंज आ रहा है, बट वी ऑलवेज try to find out the direction and the degree of the relationship between two, कि कौन से डायरेक्शन में उनका रिलेशनशिप है, इनवर्स या डायरेक्ट, और दूसरा कितना है, यानी एक को कितना परसेंट चेंज करें तो दूसरे में कितना परसेंट चेंज आएगा। तो दिस इज द डिग्री ऑफ द को रिलेशन। तो हम इसमें ये करते हैं, हम इसमें डायरेक्टली कॉज एंड इफेक्ट इसमें स्टडी नहीं करते, और ना ही हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें इसका पता भी नहीं चलता। And that's the ambiguity in relationship. Correlation can be influenced by the various factors, and interpreting the meaning of correlation requires careful consideration of the context and the potential co-founding variables. Again, हमें जो फर्स्ट चैलेंज था कि तीसरा कोई भी वेरिएबल आ जाएगा या तीसरा कोई भी फैक्टर आ जाएगा या कोई और फैक्टर आ जाएगा, तो उसके अंदर फिर हमें जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दिस इज द correlational research. If you have any questions or if you have any feedback or you want to add something सर to it, please go सर ahead. इसमें कोरिलेशन में दो और प्रॉब्लम जो होते हैं ना सर, उसमें एक हेट्रोसिडास्टिसिटी और मल्टीकुलरिटी का भी प्रॉब्लम आता है ना। Yes, yes, exactly. ये वही भी ना, एक सी चैलेंजिंग जी दैट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ये एग्जैक्टली यही तो हम डिस्कस कर रहे थे ना कि व्हेन वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स एट डिफरेंट रिसर्चेस, तो हमें फिर ऑब्वियसली उस तरह से क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट और उसके क्या कहते हैं इन्फ्लेशन का स्टडी अगर हम कर रहे हैं और उसके अंदर जो बाकी फैक्टर्स हैं वो सेम रहे एट एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, मतलब एक टाइम 2025 में हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मे बी जो बाकी फैक्टर्स हैं इकोनॉमी के, जैसे कि इंडस्ट्री हो गया, जैसे कि इकोनॉमी हो गया, ठीक है, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, जैसे कि रिमिटेंसेस हो गई, तो ये वही सेम कांस्टेंट रहने चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस। अदरवाइज फिर अगर ये चेंज हो जाएंगे ना तो इन्फ्लेशन फिर भी बढ़ता रहेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती रहेगी, इनवर्स प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, वो फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। सो द पॉइंट इज कि यहाँ जब हम
क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं ना, तो वी कंसिडर ऑल द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, और वी डू नॉट अज्यूम के ये इनमें चेंज आ रहा है। ठीक है, यू अंडरस्टैंडिंग माय जी पॉइंट? एंड सर जी जी जुबैर साहब, एम आई एबल टू रिलेट टू योर जी। पॉइंट्स? हाँ सही है सर, सही है। सर ये एक चीज मेरे जहन में है कि अगर देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च तो है, लेकिन हम्म। रिसर्च मेथोडोलॉजी तो गोया एक ही है। तो क्या ये मुमकिन है कि बाय द एंड ऑफ ऑल दिस थिंग्स है ना, कि कोई ऐसा आप हमें एक कॉमन प्रोसेस फ्लो सजेस्ट कर दें फॉर सॉर्ट ऑफ जो प्रैक्टिकली एक टेम्पलेट क्या गोया हो, कि कॉमन अप्रोच क्या होनी चाहिए? Yes, जस्ट exactly. इन Inshallah. Yes, 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 yes. We have in सिंपल plan. फॉर्म ऑफ प्रोसेस फ्लो फॉर द जी, कंडक्ट ऑफ रिसर्च। yes, exactly, exactly. You might have seen our agenda of this workshop. Is जिसके अंदर we have क्या था मेरे set आवाज? the. Yeah, I understand. I understand. You might have problem in connectivity problem at your end, so it's okay. When you hear the recording of this session, so you will understand that we have agenda, and on the 5 day of our workshop, we have a practical application of what we study in our first 4 days. और उसके अंदर we will be doing a practical research. So you will be choosing, any of the research designs according to the need of your research questions, and I'll guide you what kind of research question do you have, and what research design this research question requires. ठीक है, तो वो फिर we will be discussing inshallah on the last day. राइट सर। Thank you, thank you. Oh, sorry guys, let's take a 5 minutes break. We will be coming back down by 7:20, sorry, 12:27. And if you have any questions or anything you want to say, please write down in the chat box, because I'm leaving the screen for a while and I'll be back in 5 minutes, inshallah. So let's take a 5 minutes break, because I know you people might have been bored और थक गए होंगे, क्योंकि attention span हमारा 40 minutes का होता है, and we have been talking for last 1 hour and 7-8 minutes. So I think we should take a break for a while. Clear? Yes, sir.
What is that? No, it's just to have that image. We do a few tests. And good morning, colleagues. We can start. Apologies for that delay. And good morning to the colleagues online. I can see there are so many people online. I could have joined online too. I was busy rushing to get here, and yeah, thank you so much for joining in this workshop today. We are really happy that you could make time, even though the invite came in such a short notice. We would like to welcome Professor Abel Pinar. When people see you, they don't expect Abel Pinar to be to look like yourself, but I'll tell you why. So Prof. Pinar is actually, he originates from the marginalized Khoisan community in the Northern Cape. I don't know if you can still speak Afrikaans at this point, or you've forgotten. Welcome, Prof. I would just introduce Prof briefly, because if I were to talk about you, I will talk for an hour. I will just use what I have in front of me, and so that people can get to know who Prof. Abel Pinar is. So Prof. Pinar is actually our adjunct professor at the Durban University of Technology. He chose to apply for adjunct professorship at the university, even though he could have done it with any other university, but he just decided that he would like to contribute to our research, mainly research. Prof is a known scholar and an expert practitioner. As I've said, he comes from originally from the Northern Cape. And is a qualified nurse and an educationist. That's another field that maybe one day we will need to talk about. He is known also for his international scholarly contributions in various countries of the African continent. Of note is the South Asia, which is Pakistan and India. He has actually worked there, not just collaborated. He has been there for a number of years working in Pakistan. At this point, he is working in Botswana, with Tikanelo College in Botswana, as a provost, deputy provost academic. I want to say it correctly, deputy provost academic. Prof. Pinar has supervised more than 53 masters and PhD students from both South Africa. He says Africa, so I want to say South Africa and Asia, and also in Europe. Yeah, and his expertise is in advanced qualitative research, including theory generation, mixed and method research, which is why here today he was very excited and said, I just want to talk to you and the DUT community regarding techniques and multi-method research. But also what is exciting is that Prof is also an expert in indigenous methodologies. So he said here, in his one opinion, is that research keeps you humble. The more you learn, the more you realize you remain a lifelong learner, which I think is very true. So, Prof, welcome. I hope you will enjoy engaging with us today. Thank you so much.
Thank you so much, Prof. Gugu. On another lighter note, I always feel privileged to be with Professor Gugu because he's the only person in this room that have worked in my hometown. Assalamu alaikum, guys. I'm back. So I don't see any messages in the chat box so far. Sir, can you summarize the conduct of experimental research in a simple process? Okay, we just did that. All right. Okay. Coming to research, survey design. All right. So survey design is a research design in quantitative research. It is also sometimes is used in qualitative research as well, but it is mostly used in quantitative research when someone wants to study something it on larger kind of population and larger the scope of research is very large, so that's when we use survey design. For example, let's study its definition. Am I audible, guys? Yes, sir. All right. Thank you, Wakar. Okay. Survey design is a research method involving the systematic collection of data through the administration of questionnaire or interview to a targeted sample. Survey aims to gather information on attitudes, behaviors, opinions, or demographics from the respondents. Characteristics of effective survey design include clear and concise questions, representative sample, and consideration for respondent anonymity and confidentiality. Acha ji. Survey, as I told you, is a research design where we want to collect data systematically. Obviously, as you know, uh, that in survey we always and whenever we hear about research in social sciences particularly, we always listen a word that survey हो रहा है. ठीक है. So survey is not always there, but survey is some kind of method of collecting data. ठीक है, हम सर्वे को सर्वे डिजाइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सर्वे करते हैं, जाके कहीं से किसी की भी चीज के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सर्वे एंड इट इज यूज्ड मोस्टली फॉर लार्जर सैंपल साइज, जिसमें सैंपल साइज ज्यादा बड़ा हो. जैसे फॉर एग्जांपल आपने इलेक्शंस के टाइम पे देखा होगा कि पोल्स हो रहे होते हैं. ठीक है, पब्लिक से लोग जा करके सर्वे करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं. ठीक है, या क्वेश्चन फिल करवाते हैं या इंटरव्यू करवाते करते हैं उनसे जाके, और पूछते हैं कि आप कौन सी पार्टी को वोट करना चाह रहे हैं. ठीक है. सो इट इज बेस्ड ऑन लार्जर सैंपल साइज, जिसमें सैंपल साइज ज्यादा बड़ा हो, और क्योंकि उसके जो जनरलाइजेबिलिटी है वो ज्यादा होती है. ठीक है जी. और इसमें हम जिससे भी क्या कहते हैं अपना वो कह लें जी, जिससे भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं जिस भी रेस्पोंडेंट से या जिस भी पार्टिसिपेंट से, तो उसको एनोनिमस रखते हैं, उसका नाम शो नहीं करते. उसके नाम की उसके नाम नाम को या उसकी आइडेंटिटी को हम क्या करते हैं, कॉन्फिडेंशियल रखते हैं. ओनली द रिसर्चर नोज व्हाट हु एंड व्हेन गेव द रेस्पॉन्स. ठीक है, बाकी किसी को भी पता नहीं होता कि हु वाज द रेस्पोंडेंट एंड व्हेन डिड दे गिव रेस्पॉन्ड टू इट. ठीक है जी. सो दिस इज हाउ सर्वे डिजाइन वर्क्स. और इसके अंदर इट इज यूजुअली यूज्ड व्हेन वी वांट टू study the opinions, attitudes, or the behaviors of different population. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक इलेक्शन का एग्जांपल दिया आप लोगों को, तो इलेक्शन के टाइम पे हम ये स्टडी करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कौन सी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ज्यादा वोट लेगी. ठीक है, तो हर हलके में जाके, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जा करके एक कैमरामैन होता है और उसके साथ एक
एक रिपोर्टर होता है, एंड देन दे गो एंड दे आस्क पीपल, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पीपल दे टॉक टू, और जितने उनको रेस्पॉन्सेज आते हैं, फिर उनके बेसिस पे टीवी टेलीविजन पे आपको पोल्स नजर आ रहे होते हैं कि इतना परसेंट पॉपुलैरिटी है फलां पार्टी की, इतना परसेंट पॉपुलैरिटी है फलां पार्टी की, इतना परसेंट पॉपुलैरिटी है फलां पार्टी की। सो सो इट हेल्प्स अस प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर इवेंट, कि हम क्योंकि प्री पोल यानी इलेक्शन से पहले हमें जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं या जो हमें एस्टिमेशंस मिल रही हैं वोटिंग की, वो ये है, तो लग रही ये रहा है कि ये वाली ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, इफ यू मॉनिटर्ड और इफ यू हैड एन आई ऑन न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शंस, जिसमें जोहरान ममदानी वो कर रहे थे, कॉम्पीट कर रहे थे, तो वहां पे जो दूसरा कोमो था उसके साथ, ठीक है, एंड्रयू कोमो उसका ओपोनेंट था। तो वहां पे जब पोल्स हो रहे थे ना, तो एवरीबडी वाज सेइंग कि एंड्रयू कोमो की जो पॉपुलैरिटी है वो समथिंग अराउंड 60% थी, और जो ममदानी है उसकी पॉपुलैरिटी वाज अराउंड 7%। ठीक है, इट वाज वेरी वेरी ह्यूज डिफरेंस। ऑब्वियसली देयर वर अ लॉट ऑफ some of other members as well who were fighting for the New York mayor. तो obviously तो वहाँ पे वो क्यों हमें पता चल रहा था कि पॉपुलैरिटी लेवल उनका ये है, क्योंकि वहाँ पे सर्वे किए जा रहे थे, और उन सर्वेज के बेसिस पे वो जो रिजल्ट्स आ रहे थे, तो एंड्रयू कोमो की जो पॉपुलैरिटी थी वो वहाँ पे ज़्यादा थी। जिस तरह हमारे 2024 में यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे, तो वहाँ पे इमरान खान की पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी। देखा ये जा रहा था कि इमरान खान को ज़्यादा वोट्स मिलेंगे, पीटीआई को ज़्यादा वोट्स मिलेंगे, बट उसके बेसिस पे हम समझ रहे थे कि इमरान खान की गवर्नमेंट बनने वाली है 2024 के इलेक्शन के बाद। ठीक है, तो दिस इज हाउ सर्वे डिजाइंस वर्क। और ये पर्पस होता है कि ओपिनियन क्या है, ओपिनियन अबाउट इलेक्शन क्या है, ओपिनियन अबाउट किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में कोई परसेप्शन या ओपिनियन अगर हम किसी का मालूम करना चाह रहे होते, तो देन वी यूज और एडमिनिस्टर दिस सर्वे डिजाइन रिसर्च। इसका एडवांटेजेस क्या हैं जी? एफिशिएंसी होती है इसके अंदर। सर्वे अलाउज रिसर्चर्स टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स एफिशिएंटली एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन होती है कि जी क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें, उनमें कंसिस्टेंसी होती है, और उसके अंदर वो स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस होते हैं। वी यू आर सपोज टू आंसर इन सर्टेन वे। हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, उनके अंदर आपने रिस्पॉन्स देना है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन की पोल्स की हमने बात की, तो पाकिस्तान में चार तीन चार मेजर बड़ी पार्टीज हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो गई, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये तीन मेजर पार्टीज हैं। और जब इसके बारे में हम सर्वे करना चाह रहे हैं कि इलेक्शन कौन जीतेगा, तो हम इन तीन पार्टीज का नाम देंगे उनको। ठीक है जी। तो इन तीन पार्टीज में से रेस्पोंडेंट को कोई एक चूज करनी है, यानी कि रेस्पोंडेंट जो है हमारे पास, या जो पार्टिसिपेंट है हमारे पास, उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ही इज बाउंड टू चूज वन फ्रॉम दीज थ्री। ठीक है जी। तो दिस इज के इसके अंदर स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन है, उसके आंसर्स भी स्टैंडर्डाइज्ड हैं, और द रेस्पोंडेंट हैज टू चूज वन आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन टू देम। और इसके अंदर डेटा में भी फिर क्या होता है कि कंसिस्टेंसी होती है, कि डेटा एक ही तरह का आ रहा होता है ऑब्वियसली। ठीक है, क्वांटिटेटिव की तरह नहीं है कि क्वांटिटेटिव में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एंड यू वांट टू से समथिंग, इट इज वर्बल एंड इट इज ओपिनियन बेस्ड एंड इट इज एक्सपीरियंस बेस्ड। तो उसके अंदर पे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे डिफरेंट आंसर्स भी हो सकते हैं। बट इन सर्वे डिजाइन, सिंस इट इज क्वांटिटेटिव, तो इसमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एंड वी हैव टू बी स्टक टू the options and the standards of the question। क्लियर? और उसके बाद एनोनिमिटी होती है ऑब्वियसली, एज आई जस्ट सेड, कि इसके अंदर भी ये नो कीप द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कॉन्फिडेंशियल। तो वी डू नॉट शेयर कि किसने कब क्या रिस्पॉन्स किया है। उसके बाद क्वांटिफाइबल डेटा होता है ऑब्वियसली, सिंस इट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन, तो इसमें डेटा को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इतने परसेंट लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, इतने परसेंट लोग पीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड इतने परसेंट पीएमएलएन को सपोर्ट कर रहे हैं।
तो दिस इज हाउ वी क्वांटिफाई द डेटा। अगेन इसके चैलेंजेस क्या हैं? कल आई थिंक किसी ने कहा था कि यहाँ पे ना चैलेंजेस आ जाते हैं, बायस का चैलेंज आता है। ठीक है, कि रेस्पोंडेंट है या जो पार्टिसिपेंट है वो अपनी ट्रू जो है वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा। ये ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, सम ऑफ द टाइम्स, यानी कुछ रेस्पॉन्सेज ऐसे आते हैं हमें जो कि ट्रू नहीं भी होते, बेस्ड ऑन द सोशल डिजायरेबिलिटी बायस और द रेस्पॉन्स बायस। मतलब मैं क्योंकि ज़ाहिर है जब रेस्पॉन्स कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसके अंदर जिसके सामने मैं रेस्पॉन्स कर रहा हूँ, जाहिर है वो भी तो इंसान है ना, और उसको भी तो पता चलेगी मेरी ट्रू नेचर, तो वो भी मुझे जज करेगा। तो इसलिए फिर मैं सोशली एक्सेप्टेबल होने के लिए जो सोशली एक्सेप्टेबल आंसर होता है वो देने की कोशिश करता हूँ। दैट्स व्हाई देयर कम्स बायस इन द रेस्पॉन्स, दैट द पर्सन डिडंट provide original and genuine response, rather he was fearful, and उसने प्रेशर में आकर के एक रेस्पॉन्स दिया है। ठीक हो गया जी। उसके अलावा क्वेश्चन वर्डिंग, समटाइम्स जो क्वेश्चंस है ना इसको बहुत सिंपल करना पड़ता है। ऑल द टाइम्स रिसर्च क्वेश्चंस जो भी आपके हैं, सर्वे क्वेश्चंस हैं, उनको बहुत सिंपल करना होता है, क्योंकि एम्बिग्विटी अगर किसी भी क्वेश्चन में आ जाती है तो फिर देन दैट क्रिएट्स सम काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन द रेस्पॉन्स। ठीक है जी। तो जितना एम्बिगुअस रिसर्च क्वेश्चन होगा, फिर उसके रेस्पॉन्सेज भी उतने अनरिलायबल होंगे या उतने चैलेंजिंग हो जाएंगे फॉर द रेस्पोंडेंट। ठीक है जी। समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन की वर्डिंग, तो फिर हम उसको कैसे वो सही कर पाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है सैम्पलिंग इशू। समटाइम्स obtaining a representative sample can be challenging, leading to issues in the generalizability. Yes, exactly. Having a you know representative sample in any research is very important। ठीक है, एंड इन क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च हमें बहुत फोकस करना पड़ता है इसके ऊपर कि हमारा जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ऑफ आवर पॉपुलेशन। एक सर्टेन फॉर्मूला होता है, लेट मी जस्ट सी कि मैंने वो कहाँ पे लिखा है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक फार्मूला होता है रिसर्च के सैंपल को चूज करने का। लेट मी फाइंड आउट एंड आई विल शेयर विथ यू। सॉरी कायल। यस। तो रिसर्च को जो फाइंड करने का, रिसर्च सैंपल क्या कहते हैं, फाइंड करने का कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है और हमारे रिसर्च रेस्पोंडेंट्स कितने होंगे। ठीक है, तो उसको स्टडी करने के लिए हम एक चीज़ करते हैं, जो फार्मूला यूज करते हैं वो ये होता है कि सैंपल साइज अपॉन पॉपुलेशन साइज मल्टीप्लाई बाय क्या कहते हैं इसको, 0.25। ठीक है जी, 0.25 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो सिंपल साइज है वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल जिसको कहते हैं जी, पॉपुलेशन है 100 की। ठीक है, तो अब 100 की जो पॉपुलेशन है, हम उसको फाइंड आउट करने के लिए उसका सैंपल कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 को इंटू 0.25 से।
ठीक है, 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो इट विल बिकम 25। तो 25 रेस्पोंडेंट्स होने जाएंगे हमारे पास टू the 25 respondent will be the representative sample of 100 population। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से जो भी हमारी सैंपल साइज होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.25 से, एंड उसके बाद हमारी जो रेस्पोंडेंट्स की साइज होती है, सॉरी सैंपल की साइज होती है, वो हमें पता चल जाती है कि हमें कितने सैंपल्स चाहिए या कितने लोगों से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया जी। So this is how we choose population and sample size in in research। ठीक हो गया जी। तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना बहुत इंपॉर्टेंट है इन सर्वे डिजाइन, एंड ऑल्सो नॉन रेस्पॉन्स बायस समटाइम्स। कुछ लोग जैसे मैंने कल भी बताया था कि कुछ लोग कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स ही नहीं करते, तो देन ऑब्वियसली दैट दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम इन द एनालिसिस ऑब्वियसली, और फिर रिजल्ट्स वो नहीं आते जो आने चाहिए। सो दैट्स समथिंग विच क्रिएट्स प्रॉब्लम इन सर्वे डिजाइंस। क्लियर? एनी सर क्वेश्चंस सो फार? सर क्वेश्चन है मेरा। यस। सर अगर पॉपुलेशन का पता ही ना हो, अननोन हो, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक तो होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। सॉफ्टवेयर के थ्रू तो हम 95% मतलब मार्जिन ऑफ एरर लेते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल, और 0.05 जो है ना मार्जिन ऑफ एरर लेते हैं। तो ये इजी नहीं रहेगा सॉफ्टवेयर के थ्रू? सी सी मेरी बात सुनिए ना बाबा। जो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको डेटा मिलता है ना, ठीक है, ये डेटा आप जो पार्टिसिपेंट से लेते हैं, दैट दैट डेटा यू पुट इनटू द सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके अंदर देर इज नो फॉर्मूला टू कैलकुलेट के आपकी पॉपुलेशन कितनी। पॉपुलेशन इज समथिंग, जैसे एक क्लास के अंदर, मैंने कल भी आपको एग्जांपल दी थी शायद, कि एक क्लास के अंदर अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 स्टूडेंट्स से मैं रेस्पॉन्स नहीं लूंगा। मैं 30 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, और जो भी मेरा कहते हैं आंसर आएगा, तो मैं उतने लोगों से आंसर करूंगा। 30 को 2.5 से रिप्लाई मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना रिस्पॉन्स आता है? 30 का 25% कितना होगा? 30 के फोर्थ अगर करें तो ऑलमोस्ट 7 या 8 लोग, मुझे 8 लोगों से अगर मैं स्टडी करूं 30 में से, तो मुझे रेस्पॉन्स मिल जाएगा। मुझे 30 में से 8 लोग जो हैं, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द 30 पीपल। ठीक हो गया। तो 30 पीपल जो है वो मेरी पॉपुलेशन है, और 8 लोग जो हैं दैट इज माई सैंपल साइज। ठीक है। पर एक्सक्यूज तो मी सर, सैंपल साइज। यस। हम लोगों को किस तरीके से पता चलेगा कि हम लोग अपनी पॉपुलेशन में कितने लोग लेंगे? हाँ, ये आपको पता चलता है जैसे रिसर्च आप कर रहे हैं फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर आपको वहां से पता होता है कि डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, या क्योंकि रिसर्च पॉपुलेशन मेंशन करना रिसर्च में इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सोशल साइंसेज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि आपकी साइज कितनी थी, पॉपुलेशन साइज कितनी थी, और आप की जो सैंपल साइज है वो कितनी थी। एंड चूजिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, एज आई सेड, कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल शॉर्ट, ये मैंने बताया कि जब आपके पास डेटा बहुत पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 से। अगर म, आपके पास जो पॉपुलेशन है वो कम है, तो उसके लिए आप 3.7 से मल्टीप्लाई करते हैं आप अपनी पॉपुलेशन को। जैसे 30 है तो ये स्मॉल पॉपुलेशन है, तो 30 को हम 2.7 सॉरी 0.37 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। जैसे 100 पॉपुलेशन है या उससे मतलब 400 पॉपुलेशन है, तो उसको हम 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया जी। सो दिस इज हाउ यू हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन का पता कैसे चले, जैसे मैंने बताया कि रिसर्च आप जब कर रहे होते हो तो आपको पता होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल टीचर्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हो आप, ठीक है, तो किसी भी स्कूल के टीचर्स के ऊपर या यूनिवर्सिटी के टीचर्स के ऊपर या मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हर टीचर से डेटा कलेक्ट करो, रादर यू कलेक्ट काउंट द नंबर ऑफ टीचर्स। ठीक है, नंबर ऑफ टीचर्स को आप काउंट करते हो, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो। इफ़ इट इज़ स्मॉलर नंबर तो फिर आप मल्टीप्लाई करते हो 0.37 से, और अगर इट इज़ लार्जर नंबर तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 27 25 से।
ठीक हो गया जी. So this is how you kind of collect data, but these numbers also can change at times in different सर researches. Yes. सर वो एक कंफ्यूजन थी, आप 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे? पॉइंट टू लार्ज फाइव से बाबा. पॉपुलेशन। ओके देखो ओके, थैंक यू सो मच। जी, अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक 100 है, तो उसको 250 बन जाएंगे. तो पॉपुलेशन ही आपकी 100 है, तो 250 लोगों से कैसे इंटरव्यू करेंगे आप, या कैसे ओके डेटा सर, कलेक्ट करेंगे? क्लियर इट। ओके. सर यस, एनीबडी सर हैज एक एनी? टीचर सर एक टीचर ने हमें बताया था कि अगर आपको पॉपुलेशन मतलब सैंपल साइज का मालूम करना हो तो आप सॉफ्टवेयर यूज करें। सॉफ्टवेयर का नाम है जी पावर। तो उसमें हम क्या करते हम्म. हैं, 95% कॉन्फिडेंस लेवल लेते हैं और जीरो पॉइंट हम्म. जीरो फाइव मार्जिन ऑफ एरर लेते हैं। तो हमें पॉपुले सैंपल हम्म. साइज पता चल जाता है कि क्वांटिटेटिव में हमें कितने सैंपल की रिक्वायरमेंट है। ओके, फॉर एग्जांपल हमारा एक पॉपुलेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल 700, तो उसको हम कैसे काउंट करेंगे? सर भले 700 हो, लेकिन हम क्या करेंगे 95, वो तो आप मतलब ये बता रहे हैं ना। अगर पॉपुलेशन अननोन जी हो जी. तो उसमें हम 95% कॉन्फिडेंस लेवल लेंगे और जीरो पॉइंट हम्म. जीरो फाइव जो है ना हम उसमें ऐड करेंगे तो मार्जिन हमें ऑफ एरर लेंगे. जी जी बिल्कुल। तो अच्छा, सैंपल से कैसे पॉपुलेशन पता चल रही? दैट्स लिट कंफ्यूजिंग फॉर मी, बिकॉज ऑब्वियसली वी ऑलवेज हैव पॉपुलेशन, देन उसके अंदर से सैंपल यूज करते हैं हम. सर ये तो प्रोबेबिलिटी की बात है, प्रोबेबली सर। सर अभी तो जी मुझे बाबा. याद नहीं, लेकिन पहले हमने ये किया था, इसी तरह किया था ऑल कुछ। राइट. हम ऑल लोगों राइट. ने एक्चुअली सर, हम लोगों ने ऐसा किया यस. था कि हम लोगों ने एक पेरेंट आर्टिकल सेलेक्ट कर लिया था। उसके अंदर जो हम्म. उन्होंने अपनी पॉपुलेशन दी हुई थी ना, तो उसी को हम लोगों ने लेके उसी से पे जी पावर में डाल के और सारा मतलब ये निकाला था। आई गेस ऐसे किया था मैंने। ऑल राइट, ऑल राइट, या यही ना कि लाइक वी ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ पॉपुलेशन एट फर्स्ट, एंड उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि सैंपल साइज कितना होगा. ठीक है. तो वो आप सॉफ्टवेयर से फार्मूला लगाएं या फिर आप इंटरनेट से फार्मूला खुद मालूम करें. सो दैट्स समथिंग डिफरेंट. ठीक है, बट द पॉइंट इज कि पॉपुलेशन हमें सबसे पहले होनी चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि हम यस. सर इंटरनेशनली सैम्पलिंग रैंडम रूल्स जो है ना वो अप्लाई करते हैं। अगर हम्म. देखिए 24 करोड़ की आबादी है तो उसमें आप 0.25 वाला रूल अप्लाई करें तो से 1/4 से 6 करोड़ ना, ऑफ कोर्स इज नॉट इम्पॉसिबल ना। तो सैम्पलिंग या. हम्म. इंटरनेशनली सर वो जो है सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग रूल्स जो हैं, जो इस वक्त मुझे जुबानी तो याद नहीं, बट आई थिंक दे कैन बी इजीली रिसर्च्ड अंडर द सेम नेम रैंडम सैम्पलिंग रूल्स। जैसे ये है सर, यस, एग्जैक्टली. फॉर मैं एग्जांपल आपको हम बताता हूँ ना. जी जी जी, मैं आपकी बात समझ गया. इसमें ये होता है कि ऑब्वियसली व्हेन वी हैव लार्जर पॉपुलेशन, तो उसके अंदर सैंपल साइज कम हो जाता है, बिकॉज उसमें फाल्सिफाइबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे बढ़ जाते हैं ना. तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जब हमारे पास बढ़ जाते हैं, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो रिजल्ट्स की जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ जाती है. राइट. तो आई वॉज जस्ट सेइंग इन 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 आर रिसर्च, जो हम रिसर्च कर सकते हैं उसके अंदर हम ज़ाहिर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 24 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, हम पाकिस्तान के बेस ओवरऑल पाकिस्तान के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 1% भी हमें अगर लेना चाहें तो इट विल बी वेरी वेरी बिग पॉपुलेशन, और उससे हम डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे. क्लियर. तो उसके लिए फिर ऑब्वियसली वी चूज कोई 1,000 पीपल, 10,000 पीपल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच वी डिसाइड के क्या ट्रेंड क्या चल रहा है पाकिस्तान में, कि किस चीज़ के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है. तो द पॉइंट इज कि हम जिस पॉपुलेशन पे रिसर्च करेंगे ना, तो हम नैरोअर पॉपुलेशन पे रिसर्च करेंगे, एंड देन फॉर नैरोअर पॉपुलेशन वी हैव दिस काइंड ऑफ बट अगेन आई सेड के जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उसके पार्टिसिपेंट्स या सिंपल साइज आप डिसाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है. तो वो कम ज़्यादा हो सकते हैं. ठीक है. जैसे मैंने 2.5 और सॉरी 0.25 और 0.37 मैंने बताया, देट इज़ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन. जब आपके पास 100 तक आपके पॉपुलेशन है, तो उसके ऊपर फिर आप 25 और 37 तक जा सकते हो. ठीक है. अगर जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, सैंपल साइज उतनी
सिंपल साइज की रेशो कम होती जाएगी। सिंपल साइज तो ऑब्वियसली लोग, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ते जाएंगे, बट परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम होती जाएगी। क्लियर? सर एक क्वेश्चन मेरा आता है चैलेंजेस में। हम्म। सर जैसे हम रिस्पॉन्सेस लेते हैं, जैसे कोई रिसर्चर है वो तो ऑथर होता, मतलब ओनर होता है गूगल फॉर्म हम्म। का। तो वो तो हम्म। मल्टीपल रिस्पॉन्सेस भी लेक्चर्स ले सकता है एक बंदे से, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा? सी, दिस इज व्हाट दिस इज द ड्यूटी ऑफ द रिसर्चर। ठीक है, कि उसको इस चीज़ को मेंटेन करना है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और वो अपनी इथिकल कंसिडरेशंस को इंटैक्ट रखे, और अपनी रिसर्च को जो है वो क्या कहते हैं, एप्लीकेबल एंड रिलायबल बनाने के लिए उसके वो जितना फेयर हो सके वो हो। ठीक है, बट नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि क्योंकि रिसर्चर, जैसे आपने कहा कि गूगल फॉर्म का ओनर है, तो वो मल्टीपल रेस्पॉन्सेज फिल कर सकता है। ठीक है, तो फिर इसमें ये होता है कि आपका जो रिसर्चर खुद ही चाह रहा होता है कि मेरे पास ज़्यादा रिस्पॉन्सेज हो। ठीक है, क्योंकि लोग पार्टिसिपेट करते ही कम है रिसर्च में हमारे पास पाकिस्तान में। तो फिर वो रिसर्चर अपनी तरफ से अपने जो भी आइडियाज आते हैं रेंडमली वो पिक सिलेक्ट करता जाता है, एंड ही रिस्पॉन्सेज टू हिज रिसर्च बाय हिमसेल्फ। ठीक है, इंस्टेड ऑफ नोइंग द आइडियाज ऑफ पीपल व्हाट दे थिंक। तो फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है, एंड ऑब्वियसली दिस इज अ चैलेंज। But this is not challenge in terms of design, it is the challenge with the researcher. अब ज़ाहिर है वो अब ethical considerations को consider नहीं कर रहा, ethics को and norms को of research, तो ज़ाहिर है फिर there is a problem with the researcher, not the design. Clear? ओके सर। All right, thank you. Okay, ji. There comes a longitudinal research. Longitudinal research is the study design that involves the repeated observations of measurements of the same individuals or groups over an extended period of time. This approach aims to track changes, developments, or patterns over time, offering insights into डायनामिक नेचर ऑफ द फिनोमेना। इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम करते हैं। ठीक है, एक चीज़ का, फॉर एग्जांपल मैं एक रिसर्च मेथडोलॉजी, सॉरी एक टीचिंग मेथडोलॉजी के थ्रू एक पर्टिकुलर क्लास को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उसको फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं बार बार इसको रिसर्च करता रहूँगा, डेटा कलेक्ट करता रहूँगा, टू सी वेदर माई टीचिंग स्टाइल इज वर्किंग और नॉट, एंड हाउ वेल इट इज़ वर्किंग, वेयर वेयर टीचर इज फेसिंग सम काइंड ऑफ इश्यूज। ठीक है, तो ये हम करते हैं when we for this kind of research we use longitudinal। इसमें primary purpose क्या होता है? to to observe the change and development over time। हम different times के मतलब time to time देखने की ये कोशिश कर रहे होते हैं कि टाइम के साथ जैसे टाइम बढ़ रहा है तो क्या चेंज आ रहा है हमारे रिजल्ट्स के अंदर, या हमारी डेटा के अंदर, या हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अंदर। जैसे मैंने एग्जांपल दी टीचिंग मेथड की, तो टीचिंग मेथड को अप्लाई करते हुए पहले, अप्लाई करने से पहले क्या रिस्पॉन्स था या क्या परफॉर्मेंस थी स्टूडेंट्स की, फिर अप्लाई करने के 3 हफ्ते के बाद मैं जाऊंगा डेटा कलेक्ट करूंगा, देखूंगा कि क्या परफॉर्मेंस है, फिर 6 हफ्ते के बाद, फिर 9 हफ्ते के बाद, इस ऐसे डिफरेंट इंटरवल्स पे मैं रिसर्च करूंगा। ठीक है, फिर मैं देखूंगा कि भाई और देर वुड कम एट सर्टेन टाइम कि मैं कहूँगा कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ तक आई हैव इनफ डेटा, और इतनी रिपीटेशंस के बाद दैट दैट लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कब खत्म करनी है, दैट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द रिसर्चर। ठीक है, कि रिसर्चर कब उसको लगता है कि आई हैव इनफ डेटा टू प्रेजेंट माय फाइंडिंग्स। ठीक है, तो वो फिर उसको लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च को कितने अरसे के लिए लेना है वो फिर क्या कहते हैं डिसाइड करता है, बट दैट दैट डिपेंड्स ऑन रिसर्चर। और नॉर्मली जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती हैं वो कम से कम 1 साल की होती हैं, एंड उसमें मल्टीपल टाइम्स हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया जी। इसके चैलेंजेस क्या हैं? कॉजलिटी एक्सप्लोरेशन, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इनेबल्स, सॉरी एडवांटेजेस, कॉजलिटी रिलेशनशिप हम इसमें क्या करते हैं, देख सकते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल में भी कर रहे थे ये चीज़ और यहाँ पे भी कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल में हम
एट सर्टेन सिंगल मूवमेंट कर रहे थे, और यहाँ पे हम जो है मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। और फिर जी टेम्पोरल पैटर्न्स हमें पता चलते हैं कि रिसर्चर आइडेंटिफाई एंड एनालाइज टेम्पोरल पैटर्न्स, ट्रेजेक्टरीज एंड डेवलपमेंट्स। टेम्पोरल पैटर्न्स का मतलब ये है कि अब जो टाइम टू टाइम क्या पैटर्न बन रहा है, कोई चीज़ बढ़ रही है या कम हो रही है, या क्या ट्रेंड क्या है। दिस इज व्हाट ट्रेंड इज एक्चुअली। ठीक है, कि हम आगे प्रेडिक्ट, जिसके बेसिस पे हम प्रेडिक्शन लगाएंगे, या जिसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि नाउ पहले ये हो रहा था, अब ये हो रहा है, तो ये आगे ये होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई एंड एनालाइज दीज पैटर्न्स। ठीक हो गया, और उसके बेसिस पे फिर हम प्रेडिक्शंस बनाते हैं। एंड इंडिविजुअल वेरिएशन, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन एंड डिफरेंसेस in the context of time provides a rich understanding of behaviors. Obviously एक सर्टेन टाइम पे अगर किसी से डेटा कलेक्ट करेंगे तो ज़ाहिर है देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट विल इन्फ्लुएंस इन द ऑन ऑन द डेटा। बट अगर वही पार्टिसिपेंट से आप मल्टीपल टाइम्स पे या मल्टीपल टाइम्स डेटा कलेक्ट करोगे और डिफरेंट टाइम्स पे, तो ज़ाहिर है फिर उसके जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट होते रहेंगे, सिचुएशंस डिफरेंट होती रहेंगी, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी या इमोशनल स्टेट डिफरेंट होती रहेगी। ठीक है, फिजिकल स्टेट डिफरेंट होती रहेगी, तो उसके ऑब्वियसली जो उनके बेसिस पे देखेंगे कि वेदर साइकोलॉजिकल स्टेट और इमोशनल स्टेट और फिजिकल स्टेट ऑफ द पार्टिसिपेंट डज impact on participants response or not। ठीक है, तो ये ऑल्सो अगर नहीं आ रहा रेस्पॉन्स में चेंज, तो ऑब्वियसली फिर द पार्टिसिपेंट इज गिविंग अथेंटिक इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया जी। एंड ऑल्सो इन डेप्थ एनालिसिस, longitudinal data allow for in-depth analysis of the processes underlying changes। Obviously when we do longitudinal research और results में changes आ रहे हैं, तो then we try to incorporate uh, to study the reasons of these changes in the results। Clear? So these are the advantages of लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। और इसके जो चैलेंजेस हैं दीज आर के लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्योंकि बहुत टाइम तक चलती है, तो ऑब्वियसली इट इज़ रिसोर्स इंटेंसिव एंड इट कंज्यूम्स टाइम एंड it consumes a lot of funding and other resources. Also, participants drop out over time can also be one of the challenges, because पार्टिसिपेंट्स की डेथ हो जाती है, या पार्टिसिपेंट उस सिटी से मूव हो जाता है, या फिर और भी डिफरेंट रीजंस होते हैं जिसकी बेसिस पे पार्टिसिपेंट्स लीव कर जाते हैं रिसर्च को। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम होती है रिसर्च के लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर। ऑल्सो एक्सटर्नल इवेंट्स और फैक्टर्स में इन्फ्लुएंस, जैसे मैंने बताया कि साइकोलॉजिकल चेंजेस और साइकोलॉजिकल स्टेट, इमोशनल स्टेट, फिजिकल स्टेट और एनी अदर फैक्टर में influence on the response of the participants, so that also is one of the challenges of longitudinal research। And also analysis complexity, analyzing longitudinal data requires sophisticated statistical techniques to handle the temporal nature of the information। obviously क्योंकि data temporary होता है and over time change हो रहा होता है, तो obviously when we are trying to analyze that data, so obviously we need sophisticated very careful kind of analysis। So these are the challenges, like it creates problems, or it create analysis complex because we have temporary data over time। So these are the advantages and challenges from longitudinal research। So next we have cross-sectional research। Cross-sectional research is the study design that collects data from uh, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंटल की तरह या बाकी रिसर्चेस की तरह सिंगल टाइम पे क्या कहते हैं डेटा कलेक्ट करते हैं हम इसके अंदर। ठीक है जी। और इसके अंदर फिर भी ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन टूल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे क्वेश्चनर, सर्वे या
डिफरेंट अदर डेटा कलेक्शन टूल्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल भी ये फ़र्क होता है कि लॉन्गिट्यूडनल मल्टीपल टाइम्स, मोर देन वन टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल में, और क्रॉस सेक्शनल में हम सिंगल टाइम पे डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया जी। पर्पस क्या है इसका? Is to describe characteristics of a population or a sample at a specific point in time. It aims to provide snapshot of the prevalence and distribution of the variables of interest. Cross-sectional studies are often used for exploratory research, hypothesis generation, and to identify patterns. अब होता क्या है कि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च को जब हम जब हमें कोई हाइपोथेसिस बनानी हो, ठीक है, तो मैं हाइपोथेसिस ऐसे रेंडमली नहीं बनाता, मैं हाइपोथेसिस बनाऊंगा ऑन सम काइंड ऑफ अजम्पशन। कोई भी अजम्पशन होगी ओबियसली, तो वो मेरी किसी नॉलेज के बेसिस पे होगी, या तो फिर मैं वो नॉलेज लिटरेचर से लूंगा, ठीक है, कि कोई स्टडीज पढ़ी मैंने और उन स्टडीज में एक पैटर्न देखा मैंने, उसके बेसिस पे मैंने एक अजम्पशन बना ली, ठीक है, या फिर मैं वो खुद स्टडी करके देखूंगा, खुद रिसर्च करके देखूंगा, ठीक है, और उसके बेसिस पे मैं फिर अजम्पशन बनाऊंगा, फिर उस अजम्पशन को हाइपोथेसिस टेस्टिंग करूंगा, अगेन डेटा कलेक्ट करके। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ क्रॉस सेक्शनल रिसर्च वर्क्स। एडवांटेजेस क्या हैं इसके पास क्रॉस सेक्शनल के? एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल। और आर वी क्लोजिंग टू टाइम? हमारा टाइम क्लोज हो रहा है, राइट? इट्स यस। 1:06। ओके ओके, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। एफिशिएंट होती है ये, ऑब्वियसली एक टाइम पे टाइम डेटा लेना है, और ज़ाहिर है ज़्यादा जो है वो हमें बार बार डेटा नहीं लेना, तो ये एफिशिएंट है डेटा कलेक्शन में। कॉस्ट भी कम लगती है, क्योंकि एक टाइम पे डेटा ले रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स पे डेटा लेने से ज़ाहिर है ज़्यादा कॉस्ट, आने जाने का खर्चा, फिर क्वेश्चनर एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा एंड ऑल दैट, तो वो खर्चा कम हो रहा है। उसके बाद यूज़फुल फॉर सर्विलेंस, सर्विलेंस के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वैल्यू, क्योंकि जब भी आप किसी की बिहेवियर्स या किसी किसी के ऊपर आपको लाइक काइंड ऑफ, जैसे समझ लें किसी के बिहेवियर्स पे आपको, कोई क्रिमिनल है, ठीक है, कोई सस्पेक्ट है जिसको आपको लगता है कि यार ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो आप उसको एक सर्टेन टाइम के लिए उसके ऊपर सर्विलेंस करते हो, राइट, to see what does he do and what are their activities, ठीक है। तो वो फिर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप ये क्रॉस सेक्शनल करते हो, एंड देन वन सिंगल पॉइंट इन टाइम, और उसके बाद फिर यू लीव इट एज इट वाज। ठीक हो गया जी। फिर चैलेंजेस क्या हैं? नो टेम्पोरल एनालिसिस, इसमें टेम्पररी एनालिसिस कोई भी नहीं होती है, ठीक है, और कॉजलिटी इसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं शो करते, बट समटाइम्स करते भी हैं। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज, ज़ाहिर है एक टाइम पे लिया है डेटा, तो चेंज हम कैसे मालूम करें, नहीं कर सकते, तो दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। वी जस्ट हैव टू गेट ओनली व्हाट वी से दैट द परसेप्शन एट प्रेजेंट टाइम, और ये परसेप्शन अगर चेंज भी हो रहा है ओवर टाइम, तो हम उसको फिर उसके लिए दोबारा क्रॉस सेक्शनल करना पड़ेगी। ठीक है हो गया जी। उसके अलावा कैन नॉट असेस द कॉज एंड इफेक्ट, ऑब्वियसली रिलेशनशिप तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे आपने कोरिलेशनल स्टडी में किया था, बट हम कॉज एंड इफेक्ट स्टडी नहीं कर सकते इसके अंदर, क्योंकि वो एडिशनल डिजाइन उसके लिए चाहिए। ठीक हो गया। फिर वल्नरेबल फॉर कंफाउंडिंग फैक्टर्स, जाहिर है एक पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल स्टेट में जब रेस्पॉन्स पर किसी पर्सन ने दिया है, ठीक है, और उसकी आफ्टर सर्टेन टाइम रेस्पॉन्स, साइकोलॉजिकल जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है, या इमोशनल स्टेट चेंज हो जाती है, तो उसके बेसिस पे उसके ओपिनियन चेंज हो जाते हैं, जाहिर है, ठीक है, तो फिर वो जो डेटा है वो नॉट एज ट्रू हो जाएगा। ठीक है।
तो that's one of the challenges in cross sectional के इमोशनल चेंज या साइकोलॉजिकल चेंज या किसी भी और फैक्टर की वजह से जो डेटा मिला है हमें या जो पार्टिसिपेंट ने डेटा हमें दिया है वो किसी भी चेंज की वजह से या किसी एक्सपीरियंस की वजह से वो चेंज हो सकता है। तो फिर जाहिर है फिर वो उसका ओपिनियन वो अब वो नहीं रहा जो उसने हमें बताया था, रादर उसका ओपिनियन चेंज हो चुका है। सो दिस ऑल्सो creates a problem or creates a challenge in this kind of research. So this is all about quantitative research designs. If anybody has any questions, the floor is open for questions. Nobody has any questions? सर प्लीज ये जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है ये थोड़ा रिपीट करेंगे? Uh, यस, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हम एक टाइम पे डेटा कलेक्ट करना हो जब किसी भी चीज के बारे में, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च आर टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च दैट आर रिलेटेड टू टाइम ड्यूरेशन, कि कितने टाइम के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वी डू व्हेन वी हैव टू यू नो काइंड ऑफ हम किस तरह की रिसर्च करना चाह रहे हैं या हमारे वेरिएबल्स क्या डिमांड कर रहे हैं हमसे, ठीक है, या हमारे रिसर्च क्वेश्चंस क्या डिमांड कर रहे हैं हमसे, ठीक है। सर्वे डिजाइन हम तब यूज करते हैं जब हमें डेटा जो है वो लार्जर पॉपुलेशन से कलेक्ट करना हो, ठीक है। सो दीज लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल आर ऑफ, ऐसे समझ लें कि एक कैटेगरी के अंदर आते हैं और वो है टाइम, ठीक है। क्रॉस सर्वे डिजाइन जो है वो दूसरी कैटेगरी में आती है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। और जो एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल एंड कोरिलेशनल, दैट इज अनदर कैटेगरी जिसको हम कह सकते हैं कि ये ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वेरिएबल्स डिमांड्स फ्रॉम अस और व्हाट रिसर्च क्वेश्चंस डिमांड फ्रॉम अस, तो उसके बेसिस पे हम कोरिलेशन और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, ठीक है जी। सो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, और ये 5 टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च हम इनको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वेरिएबल डिमांड्स फ्रॉम अस, एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वी हैव, एंड तीसरा जो है कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड क्वेश्चनर बीइंग एडमिनिस्ट्रेड, ठीक है जी। सॉरी, सॉरी। सो दिस इज क्रॉस सेक्शनल हम जब करते हैं जब एक टाइम पे डेटा कलेक्ट करना हो, और लॉन्गिट्यूडनल हम जब करते हैं जब हमें मल्टीपल टाइम्स पे डेटा कलेक्ट करना हो, ठीक हो गया जी। सो दिस इज दिस इज डिफरेंस बिटवीन दीज डिफरेंट रिसर्च मेथड डिजाइंस, ठीक हो गया जी। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस सो फार, यू कैन आस्क। It appears nobody has any questions. So, this is it for today, and inshallah, we will try to cover these two research approaches, qualitative and mixed method research approach designs, in tomorrow's sessions. I request you people to please come in time so that we can conclude these, complete these all topics that we have planned to complete in this workshop, so that you get
as more information as we possibly could give you. Otherwise फिर मैं नहीं चाह रहा कि मैं ज़्यादा जल्दी चलूँ किसी भी चीज़ के ऊपर और कोई चीज़ें मिस हो जाएं. So it would be really appreciated if you join the मीटिंग एट द टाइम इट स्टार्ट्स. ठीक है, वरना हम फिर 5-10 मिनट 15 मिनट हम वेस्ट कर देते हैं इन इन वेटिंग, और फिर ज़ाहिर है फिर उसकी वजह से हमारा जो कंटेंट है वो थोड़ा सा रह जा रहा है. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस. वन लास्ट टाइम, if anybody has any questions you can ask, and otherwise we are good to go and we will be ending this meeting. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you. All right, thank you Zubair, thank you Daniel, thank you. Allah Hafiz guys, thank you.